Jai Hind everyone, how are you all? Chale, we are back again with the another chapter. But before starting, we have to recite the shloka. So everyone will recite the shloka with me, okay? So be ready for the shloka. Let's start. Om Sarve Bhavantu Sukhinah Sarve Santu Niramaya सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति 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 Jai Hind students, how are you all? Hope you are enjoying and safe at your homes. Chaliye, we have already completed 3 chapters. Now, today we have to start our 4th chapter, that is Freedom Struggle before Mahatma Gandhi. That is the time period of between 1857 to 1915. So, in this chapter, we will talk about the time period between 1857 to 1950. 1857 से लेके 1915 जब गांधी जी इंडिया वापस आए थे और इन्होंने पॉलिटिक्स में एंटर किया था, तो उसके पहले इंडिया की कंडीशन क्या थी, इंडिया की पोजीशन क्या थी, इंडिया में ब्रिटिशर्स का कितना कंट्रोल था और ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, कैसे वो इंडिया में क्या नई चीज़ें हो रही थी, that we will discuss in this topic. Mainly, we will discuss about social reformers, formation of INC, that is Indian National Congress, then the policy of divide and rule of Britishers, and step towards independence. These are the main topics that we are going to study in this topic, in this video. Okay. First of all, let's do the gear up. See, you have given some quotes, जो इन quotes की वजह से आपको इन personalities को find out करना है. See, the first quote is, I was the Queen of Jhansi. Everyone knows who was the Queen of Jhansi. She was Rani Lakshmi Bai. I fought against the British in the Battle of Plassey. You must know the answer. Yes, it was Siraj-ud-Dawla. Next and the last, I discovered the sea route to India. That to everyone knows. That Vasco da Gama. Okay. Chaliye. Now, first of all, we will discuss about the social reformers. As social reformers, तो होते क्या है social reformers? Social reformers are the person who bring some important change in society. वो लोग जिन्होंने सोसाइटी में कुछ इम्पोर्टेंट चेंजेस लाए थे, दे आर नॉन एज द सोशल रिफॉर्मर्स. उन्होंने सोसाइटी को रिफॉर्म किया था, चेंज किया था इन अ बेटर वे. सो दे आर नॉन एज द सोशल reformers. There were many social reformers at that time. Raja Ram Mohan Roy, Swami Dayanand Saraswati, Ishwar Chandra Vidyasagar, Pandita Ramabai, Swami Vivekanand and many more. बहुत सारे social reformers थे who were active during that time. First of all, let's read what is being given over here. The era of social reforms started just after the suppression of the revolt of 1857. See, जब 1857 का revolt, when it was suppressed, that means कि वो destroy हो गया था. After that, the era of social reforms was started. उसके बाद इंडिया में social reforms शुरू हुए, changes आने शुरू हुए. The rule of the East India Company came to an end. As we have discussed earlier, हमने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि ईस्ट इंडिया आफ्टर द बैटल ऑफ दैट 1857 के रिवॉल्ट के बाद इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल टोटली फिनिश हो गया था. नाउ द टोटल कंट्रोल ऑफ इंडिया केम अंडर द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, दैट वाज क्वीन एलिजाबेथ. तो उनके कंट्रोल में
इंडिया का पूरा कंट्रोल आ गया था. The administration of India was taken over by the Queen of England. इंडिया का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857, जब तक 1857 का रिवॉल्ट हुआ और वो फिनिश हुआ, तब तक पूरा का पूरा इंडिया ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ चुका था. तो अब इस रिवॉल्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल फिनिश हो गया था और इंडिया को डायरेक्टली इंग्लैंड की क्वीन के थ्रू कंट्रोल किया जाता था, एडमिनिस्ट्रेट किया जाने लगा. Even though the revolt had failed, it sowed the seeds of nationalism among the people of India. Yes, वैसे तो revolt fail हुआ था because there were many reasons for the failure of this revolt. We have already discussed 3 to 4 reasons were there. हमने पहले भी डिस्कस किए थे कि बहुत सारे रीज़न थे जिनकी वजह से ये रिवॉल्ट जो है वो फेल हुआ था, बट ऐसा नहीं था कि उस रिवॉल्ट की वजह से कुछ चेंज नहीं हुए. ये रिवॉल्ट ज़रूर फेल हुआ था, बट उसकी वजह से जो इंडियंस थे उनके अंदर एक नेशनलिज्म की जो स्पिरिट थी, जो थिंकिंग थी, वो ग्रो होने लगी थी. नाउ दे रियलाइज दैट दे आर इंडियंस, they realized to work for their that country. Leaders realized that they had to remove social evils from the society to achieve the goals. जो leaders थे या जो social reformers थे, उन्होंने क्या realize किया कि if they want to achieve their goal, if they want to let the country free from the Britishers, they need to destroy, they need to remove all the social evils which were presented in India during that time. जो उस टाइम इंडिया में थी वो सारी की सारी एविल्स को उन्हें रिमूव करना होगा. Social reformers played a significant role in making India a more progressive and forward. See, as I told you earlier, social reformers were the persons, those who bring a good change in the society. तो उन्होंने इंडिया की डेवलपमेंट, इंडिया की प्रोग्रेस में काफ़ी एक अपना रोल प्ले किया. ओके, फॉरवर्ड लुकिंग कंट्री. ओके, they fought against several social evils such as sati pratha, child marriage and casteism etc. बहुत सारी ऐसी social evils थी जिनके अगेंस्ट उन्होंने फाइट की, एंड with the great extent they were able to remove these evils. वो इन evils को रिमूव करने में भी सफल हुए थे. Such as sati pratha. Sati pratha was a evil. Child marriage and casteism. Sati pratha, that means it was what you can say, it was a ritual. एक तरीके से वो पहले एक रिचुअल हुआ करता था, बिलीफ होता था दैट जो हिंदू वाइफ्स होती थी उन्हें अपने डेड हस्बैंड की बॉडी के साथ उनके फ्यूनरल के टाइम पे उन्हें भी क्रिमेट किया जाता था. सो दैट वाज सती प्रथा. सेकेंड वाज चाइल्ड मैरिज. जो बच्चों की शादी बचपन में ही कर दी जाती थी, एंड दे वर नॉट एबल टू रियलाइज देमसेल्फ. एंड कास्टिज्म सो वी आर फेसिंग राइट नाउ ऑल्सो, बट बहुत कम है पहले के अकॉर्डिंग. कास्टिज्म, that means caste system. Social reformers. Raja Ram Mohan Roy is known as the maker of modern India. See, you have given the picture of Raja Ram Mohan Roy over here. Raja Ram Mohan Roy is known as the maker of modern India. Yes, Raja Ram Mohan Roy को आधुनिक भारत का निर्माता, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है. He was a great scholar and independent thinker. वो एक बहुत ग्रेट स्कॉलर थे और इंडिपेंडेंट थिंकर थे. Why he considered as the maker of modern India? Because कि एक बहुत बड़ी एविल को
रिमूव करने में उन्होंने बहुत हेल्प की थी, इट वॉज सती प्रथा। उन्होंने सती प्रथा को इंडिया से रिमूव किया था। उनके एफर्ट्स की वजह से ब्रिटिशर्स ने इंडिया में एक लॉ पास किया था कि सती प्रथा नहीं किया जाएगा। सो ये उनके एफर्ट्स थे जिनकी वजह से सती प्रथा को अबॉलिश किया गया था। दैट्स वाई ही इज कंसीडर एज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द ब्रह्मो समाज। उन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। ही फाउंडेड ब्रह्मो समाज। वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। ये उनका मूवमेंट था, भारत का आप पहला मूवमेंट भी कह सकते हैं, विच वॉज सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म। दैट मीन्स ऐसी सोसाइटी, ब्रह्मो समाज वॉज लाइक अ सोसाइटी, वो एक ऐसी सोसाइटी थी जहाँ पर रिलीजन का डिफरेंस मायने नहीं रखता था। बड़ा छोटा, अमीर गरीब, रिलीजन्स, कोई भी रिलीजन्स, ये सब चीजें मायने नहीं रखते थे। दैट वॉज ब्रह्मो समाज। ही प्लेड अ मेजर रोल इन अबॉलिशिंग द सती प्रथा। उन्होंने सती प्रथा को उसे बैन करने में, उसे रोकने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इट वॉज एन ओल्ड प्रैक्टिस वेयर अ हिंदू वाइफ बर्न्ट हरसेल्फ ऑन द फ्यूनरल पायर ऑफ हर हस्बैंड। ये एक पुरानी प्रैक्टिस थी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रैक्टिस, जो हिंदू वाइफ्स होती थी उन्हें उनके हस्बैंड की डेड बॉडी के साथ ही क्रिमिनेट किया जाता था। सो इट वॉज कॉल्ड सती प्रथा। It was due to his efforts that Lord William Bentinck enforced certain laws to abolish this evil practice. ये उनके ही efforts थे जिसकी वजह से लॉर्ड विलियम बेंटिंक, who was the Governor General of India at that time, उन्होंने ये लॉ एनफोर्स किया इंडिया में कि सती प्रथा को पूरी तरह से अबॉलिश किया जाएगा। इंडिया में सती प्रथा की प्रैक्टिस नहीं की जाएगी, उसे टोटली बैन किया गया जस्ट बिकॉज ऑफ राजा राम मोहन रॉय। एंड दैट्स व्हाई ही इज स्टिल कंसीडर्ड एज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया. These informations are very important, that Raja Ram Mohan Roy, he founded the Brahmo Samaj, he abolished the Sati Pratha, and he is known as the maker of modern India. Now, second was the Swami Dayanand Saraswati. You are very well, might be you are very well aware about the Swami Dayanand Saraswati. He was a social reformer. He was the most radical socio-religious reformer. Radical, that means a person or something change in society, social and political convents of the society. So social or political change होना society में, that is called radical. Swami Dayanand Saraswati was one of the most radical socio-religious reformer in the history of India. ही वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज. जैसे राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज फाइंड आउट किया था, ऐसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी. ही फाउंडेड द आर्य समाज. सेम लाइक ब्रह्मो समाज, इन आर्य समाज ऑल्सो द कास्ट सिस्टम को फॉलो नहीं किया जाता था. एनीवन कैन एंटर in Arya Samaj and all the persons of Arya Samaj are equal, whether they are rich, poor or belonging to different caste, they were considered as the same, at the same level, and propagated egalitarian approach of the Vedas at the time when casteism was prevalent in the society. See, उन्होंने क्या किया था, वो टाइम पे जब सोसाइटी में कास्टिज्म को फॉलो किया जाता था, उन्होंने वेदास की जो एक अप्रोच थी, एक थॉट थी, दैट ऑल आर इक्वल. जैसे हमारा लॉ कहता है, our laws are depend on our Vedas also. So in the eyes of law, all are equal. तो वेदास में भी यही लिखा गया है, all are equal and everyone has equal right
फॉर एवरीथिंग, तो उन्हें इक्वल राइट्स मिलने चाहिए. सो उसी थिंकिंग को, उसी अप्रोच को उन्होंने सोसाइटी में एनकरेज किया. नेक्स्ट वॉज ईश्वर चंद्र विद्यासागर. Ishwar Chandra Vidyasagar, he was also considered very important social reformer because he abolished child marriage. उन्होंने चाइल्ड मैरिज को अबॉलिश किया था, दैट चिल्ड्रंस की मैरिज नहीं होनी चाहिए, दे शुड गेट द चांस टू ग्रो अप, टू डेवलप देमसेल्फ. ईश्वर चंद्र विद्यासागर championed the cause of abolition of child marriage and equality of all castes. उन्होंने चाइल्ड मैरिज को अबॉलिश किया था एंड दे वर इन फेवर ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑल कास्ट. एट दैट टाइम देयर वाज कास्ट सिस्टम. कुछ कास्ट होती थी जिन्हें अपर समझा जाता था और कुछ कास्ट होती थी जिन्हें लोअर समझा जाता था. एंड ही बिलीव इन द इक्वालिटी ऑफ ऑल कास्ट. वो सभी कास्ट की इक्वालिटी में बिलीव करते थे. To prove his point, he also had meals with the people belonging to the subordinate section of the society. अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए कि all the caste should be equal, they are equal. वो क्या करते थे, ऐसी कास्ट के लोग जिन्हें सबॉर्डिनेट या लोअर रैंक पर समझा जाता था, दे यूज टू हैव मील विद देम. वो उनके साथ बैठकर खाना खाते थे. He also advocated in favor of widow remarriage and women's education. उन्होंने widow remarriage, that means विधवा विवाह पर भी फोकस किया, and women's education, that women should also get education. At that time women या girls को education नहीं दी जाती थी. So उन्होंने इन चीज़ों के ऊपर भी फोकस किया. Along with them, there were a lot of other social reformers who struggled for India's independence. See, we have discussed about three: Raja Ram Mohan Rai, Swami Dayanand Saraswati, Ishwar Chandra Vidyasagar. But not only three were there; there were many others. Like I have already told you, Pandita Ramabai was there, Swami Vivekanand, many others were also there. जिन्होंने इंडिया के में बहुत सारे चेंजेस लाए, बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स लाए. नाउ नेक्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. जो हमारी कांग्रेस है, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फॉर्मेशन. सी, एलन ऑक्टेवियन हुमे, और यू कैन से A.O. हुमे, was the founder of इंडियन नेशनल कांग्रेस. उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को फाउंड किया था, उसकी फाउंडिंग की थी इन 1885. 1885 में कांग्रेस जो है वो बनी थी. एंड इट वाज फाउंडेड, इट वाज स्टार्टेड बाय एन इंग्लिश पर्सन A.O. हुमे, which is Alan Octavian Hume. It was India's first political party. ये इंडिया की पहली पॉलिटिकल पार्टी थी. द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट towards the problems faced by the Indians. At that time, India was having the administration of British, and Britishers were not ready to see the condition of Indians. They just wanted to gain their profit. वो सिर्फ अपने प्रॉफिट में ही बिलीव करते थे. इंडियंस की कंडीशन क्या है, वो इंडियंस को किस तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, they were not ready to see that. So at that time 1885 में INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था, which was done by Alan Octavian Hume. Why it was found? It was formed to draw the attention of British government towards the problem faced by Indians. कि इंडियंस वो टाइम पे जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, उनका जिस तरह से एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, वो सारी चीजें ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने लाने के लिए, उन्हें दिखाने के लिए ये फॉर्म की गई थी, ये कांग्रेस फॉर्म की गई थी. इट वॉज द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया. ये इंडिया की पहली पॉलिटिकल पार्टी थी. सिंस
its inception, the Indian National Congress has been responsible for many radical changes in Indian policies. जब से इसका फॉर्मेशन हुआ था तब से लेकर आईएनसी की वजह से इंडिया में बहुत सारे रेडिकल चेंजेस आए थे, बहुत सारे सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस आए थे. पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ जॉइंड इट. बहुत सारे लोगों ने, दोज हु वर फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट कस्टम्स, दे जॉइंड द आईएनसी. Okay, now we will discuss about the nationalist, the moderates and the nationalist. See, the INC was actually divided into two parts. जो INC थी which was formed in 1885, वो two parts में divided थी, which were moderates and nationalists. ये दो ग्रुप थे INC के जिनकी थिंकिंग आपस में मैच नहीं करती थी. वो दो अलग थिंकिंग के पार्टीज थी. दे बोथ वर नॉन एज आईएनसी बट विद डिफरेंट नेम्स, मॉडरेट्स आईएनसी एंड नेशनलिस्ट्स आईएनसी. जो मॉडरेट्स होते थे वो बिलीव करते थे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो है हम ब्रिटिश गवर्नमेंट से बात कर सकते हैं, उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, मीटिंग्स कर सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं. तो इन सारी चीज़ों के ज़रिए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है. बट जो नेशनलिस्ट होते थे वो टॉकिंग में बिलीव नहीं करते थे. दे बिलीव इन एक्शन. दे बिलीव कि सिर्फ बात करने से ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं समझेगी. वी नीड टू डू समथिंग फॉर आवर सेल्फ. हमें हमारी हेल्प खुद ही करनी पड़ेगी. सो ये दो अलग अलग थिंकिंग थी मॉडरेट्स और नेशनलिस्ट ग्रुप की. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज गिवन ओवर हियर. The INC was broadly divided into two groups, the moderates and the nationalists. Moderates were those who aimed to solve the problem through discussions, meetings and repeated requests. तो जो moderates होते थे वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना चाहते थे? डिस्कस करके, मीटिंग करके या बार बार रिक्वेस्ट करके. They believed in the British sense of justice. वो ब्रिटिश जस्टिस में बिलीव करते थे कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडियंस की कंडीशन के बारे में पता चलेगा तो वो डेफिनेटली इंडियंस की हेल्प करेंगे. दे वर इन बिलीव ऑफ दैट. जो मॉडरेट पार्टी के जो लीडर्स थे वो कौन कौन थे? दे वर दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड बदरुद्दीन तैयब जी. They were the leaders of moderate group. वो moderate group के leaders थे. Second was the nationalist. Some members of the INC did not approve the moderate approach. INC के कुछ मेंबर ऐसे थे जो ये moderate approach में believe नहीं करते थे. That कि सिर्फ बात करके, मीटिंग करके या ब्रिटिशर्स को बार बार रिक्वेस्ट करके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है. They were not in belief of that thing. They were called the nationalists. उन्हें nationalists कहा जाता था. Leaders like लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक and बिपिन चंद्र पाल were very critical of the British. They believed that people must fight for their rights. तो जो nationalist group के leader थे वो कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल, विच वर कलेक्टिवली नॉन एज लाल बाल पाल, जिन्हें लाल बाल पाल भी कहा जाता था. लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल. सो दे वर नॉट इन बिलीफ दैट कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से बात करके, उनसे रिक्वेस्ट करके, उनसे डिस्कशन करके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है. दे वर इन बिलीफ दैट कि हमें अपने लिए, अपने राइट्स के लिए खुद फाइट करना पड़ेगा. वी मस्ट फाइट फॉर आवर राइट्स. तो ये उनकी बिलीफ थी. इन 1907 एट द सूरत सेशन ऑफ कांग्रेस there was a major difference in the opinion of moderates and nationalists. See, 1907 में ये दो ग्रुप सेपरेट हुए थे. सूरत सेशन में, कांग्रेस का सूरत में एक सेशन हुआ था इन 1907. तो वहां पर ये दोनों ग्रुप्स की जो ओपिनियंस है वो
सेपरेट थी, वो मैच नहीं होती थी. द नेशनलिस्ट ग्रुप वॉज नेम्ड लाल बाल पाल. नेशनलिस्ट ग्रुप को जो है नाम दिया गया था लाल बाल पाल, दैट इज लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल. Beside advocating Swadeshi movement, they advocated a total boycott amounting to non-cooperation and non-payment of tax. See, तो उनकी बिलीव क्या थी? जो लाल बाल पाल थे, जो नेशनलिस्ट थे, उनकी बिलीव क्या थी? दे बिलीव इन स्वदेशी मूवमेंट. स्वदेशी मूवमेंट दैट मीन्स एवरीथिंग शुड बी ऑफ आर कंट्री, दैट कि हमें सिर्फ हमारी ही कंट्री में बने प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहिए. दैट इज कॉल्ड स्वदेशी मूवमेंट. Apart from that, they were in belief of total boycotting of Britishers and the non-payment of taxes, कि हमें ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को टोटल बॉयकॉट करना चाहिए, मतलब ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए. एंड इवन वी शुड नॉट पे एनी टैक्स टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोई टैक्स भी नहीं पे करना चाहिए. सो ये उनकी बिलीव्स थी, ये उनकी पॉलिसीज थी जिन्हें वो फॉलो करते थे. So in this video we have discussed about social reformers, the formation of INC, the two groups of INC, that is moderates and nationalists, and the leaders, the main leaders of moderates and INC. Now rest of the part, that is policy of divide and rule and the step towards independence, that we will discuss in our next video. Okay, bye.